पिछली बार हम लोग ने फर्स्ट क्लास में हमने समझा कि आत्मा का कनेक्शन, काउजल बॉडी वगैरह वगैरह हमने सीखा। फिर नेक्स्ट क्लास में इस कनेक्शन को हमें अपनी आत्मा के साथ करना है या बाहर की एंटिटीज के साथ करना है, किसके साथ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, हमने ये सब समझा। और पिछले क्लास में हमने ज्यादातर सर के ही वीडियोस चलाए, क्योंकि हमने उन्हीं से सीखा है। मैं तो ऊपर जाके वापस आई नहीं हूँ ये बोलने को, मुझे ये सब एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने पीवीएच में जाके वांट मांगी नहीं है, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है। हमने वो ही सीखा है जो सर ने समझाया और हमारी सोल ने एक्सेप्ट किया। अगर मेरी सोल काफी जगह पे काफी सारे वीडियोस देखी थी दूसरे लोगों की भी, तो उससे ज्यादा मुझे ये सब ज्यादा हजम हुआ, अच्छे से एक्सेप्ट हुआ मेरी सोल को। तो मैं इसको आगे लेके गई और आगे पढ़ने की इच्छा की और आगे और समझने का मेरी सोल ने उसका प्रयास किया, जिसके वजह से आज यहाँ पे बैठे हैं और आपको भी समझा रहे हैं या आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें जब सर के मुंह से आती है तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड कि सर क्या कहना चाहते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं पीवीएच आध्यात्मिक स्वच्छता का पार्ट 3, जिसमें हम समझेंगे कि पीवीएच हमें कैसे हेल्प करता है स्वच्छता मेंटेन करने में। ओके, लेकिन उसके सबसे पहले एक सर का वीडियो देखते हैं टू स्टार्ट। नहीं, ये नहीं प्ले करेंगे, आई एम सॉरी, नॉट दिस वन। ओके, 1 मिनट। हमने पिछली बार बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ समझे थे। आज सर का एक ये वीडियो देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर देयर रश्मि ऑन द यूट्यूब, वो ही प्ले किए थे, और अगर अपलोड हुआ तो विल शेयर इट विथ यू। या The four noble truths of Gautama Buddha. Number one, life inevitable sufferings. Number two, there's a cause to our suffering. Number three, the end to our suffering. And suffering contains the eightfold path. It's the eightfold path of Gautama Buddha. That he found out, he wanted to find a situation how, why people are suffering all over the world. And he found a good thing by saying that people are suffering because of their own desire for something they cannot get. No? So that's why he says the more you start having a lot of emotion, the more trouble you will be. Okay? Very nice. Next, how is an end to the suffering is contained in the eightfold path. You can end the suffering. The eightfold path is very simply that right view, right thought, right speech, right conduct, right making a living. I mean, when you make a living, you don't cheat people. Okay? Next on the right giving effort, right mindfulness and right concentration. Simple as that teaching, and nirvana will come to you. Gautama Buddha never talk about God. What's the point of talking God, searching for God when you're not ready or not doing the good things? You must do good things and then you can do for God. God will come to you. I tell everybody. You start healing somebody, God is standing beside you. And who is the God? All the nature beings, spiritual guide, helpers, healing angels, teachers, they will come. God will come. What's that? God will come. Simple. Look at this charger. This phone is a charger. Can I touch it? Can touch it. Nothing happens. Why? Because I've got a transformer. It transforms the battery to low. Can I touch here? Why? It's 240 volts. I may get die, I may get a pill and die. But this I can touch. So this is the transformer. So God is a very high energy level. You transform lower, lower, lower. Actually you've got a spiritual guide, helpers, teachers to come to you and do what is good for you. And so you must always ask for them to come to you. God cannot come to you. A big light, you may be blind. The light is so bright that you get blinded. So don't expect God to come. That's why I say all this when you can please God, you must become the light in order to go towards God. How do you become the light? This is the way of becoming light. Right speech, right conduct, don't worry about the people, don't gossip. And then you will now become one with that divine. Then you can merge.
Madam, Nanputi. Tiba-tiba. See. It's a mastic, okay? You open this mastic. Okay, put a mastic, huh? It's a small fire. Small fire. Small fire. It's a small fire. Okay, it's a small fire. Okay? It's a small fire. Right. But where's the bigger fire? Where's the biggest fire? Where you put when you cook. Big fire. Bigger fire. When the whole thing starts burning, the whole thing starts burning. What's the biggest fire of them all? The sun. The sun is the biggest fire of them, burning every day and sending light and power to everybody. The heat comes so hot. When you go out in the sun during lunch, during the afternoon, how hot is it? It's 45 degrees C. What degree? Only 45 degrees. What about the fire in the sun itself? How much? 2,800 degrees C? Or 3,000 degrees C? Nobody knows. You estimate only. That is the divine. Divine is even much more than that. That's the divine fire. The divine fire don't burn. The divine fire will cool you down. But you can merge with the light. You must be the divine fire to merge. That's why we're saying, I am a being of divine fire. I am the purity God desire. My soul, the soul of divine fire, my soul is the purity God. So your soul must also become one of the lights. And then you can merge. Sometimes you'll ask me, so I will bring every day. You cannot be a light the same day. Slowly you will improve. Okay? Right. So now आई होप थोड़ा वॉइस इसका क्लियर नहीं था, लेकिन आई होप सबको समझ में आया सर क्या कह रहे थे। ओके, यही आज का क्लास, ये सर का एक ही वीडियो है। पिछली बार हम लोग ने सर के 2-3 वीडियोस प्ले किए थे। आज का क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव होने वाला है हमारा, जहाँ पे हम पूछेंगे, हम बात करेंगे, मैं भी कुछ आपसे सीखूंगी। ओके, तो पीवीएच आध्यात्मिक अभिकथन, स्पिरिचुअल एफर्मेशंस मतलब क्या? उसका मतलब है हमको स्वयं से और फिर उच्चतम आत्मा से जुड़ने का प्रयास। ओके, हमें कैसे हमको खुद को, यहाँ पे जो एक सोल है, जो एक आत्मा है, उसको कैसे हमारी उच्चतम आत्मा, जिसके ऊपर हम लोग ने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था काफी सारा, तो हमारी उच्चतम आत्मा से कैसे मिलाना है और फिर उससे आगे हम कैसे ईश्वर के साथ एकाकार हो सकते हैं, उसके बारे में हम आध्यात्मिक अभिकथन में समझेंगे कि वो पढ़ने से क्या होता है। ओके, सो नाउ दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉज थिंग। पीवीएच हमेशा हमें बताता है कि पीवीएच क्या है, बॉडी माइंड, सॉरी, पीवीएच बताता है कि व्हाट आर वी आर बॉडी, माइंड एंड सोल। शरीर, मन और आत्मा, किसी भी व्यक्ति का विभाजन इन 3 चीजों में किया गया है। तो शरीर वह है जो हमें साक्षात रूप में दिखता है। आप मेरा फॉर्म देखते हो कि ये फेस देखा तो ये रीमा है, ये फेस देखा तो ये अमिताभ बच्चन है, ये फेस देखा तो ऋतिक रोशन है। ओके, तो वो रिकॉग्निशन, फिजिकल फॉर्म जो आपको दिखता है वो हमारा शरीर है। अभी नेक्स्ट आते हैं मन पे। यहाँ पे मुझे थोड़ा आप लोग से समझना है कि मन और दिमाग दोनों एक ही है क्या? दिस विल बी अ डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग। किसी के पास भी जवाब है, प्लीज अनम्यूट होके जवाब दीजिए। और अगर मन और दिमाग अगर एक है तो ओके, अगर मन और दिमाग एक नहीं है तो क्या है? प्लीज अगर कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है तो, क्योंकि ये सब समझे बगैर हम ये समझेंगे ही नहीं कि व्हाट इज बॉडी, माइंड एंड सोल। वी विल नॉट अंडरस्टैंड। तो मन और दिमाग, हम बोलते हैं ना, मुझे आज ये खाने का मन है, मुझे पाव भाजी खाने का मन है, मुझे ये आइसक्रीम खाने का मन है। तो मन और दिमाग एक ही है क्या? एनीबडी? आरती जी, मुझे लगता है नहीं है, एक नहीं है। ओके, क्योंकि आपने खुद ही अभी कहा है कि मेरा दिमाग सोचता है कि मुझे मीठा खाना चाहिए, मुझे मीठा पसंद है, लेकिन दिल, अगर मुझे मालूम है कि मन चाहता है, लेकिन मुझे, मेरा दिमाग को पता है कि अगर मैं मीठा खाऊंगी तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी। तो इसीलिए मन और दिमाग एक नहीं है। मन बहुत कुछ चाहते हैं,
जो हम नहीं भी पा सकते हैं वो भी चाहते हैं, लेकिन दिमाग का तो सोच है ना, लिमिटेशन है। वो जानता है कि हम यही पा सकते हैं, उसके अलावा नहीं पा सकता है, तो वही तक वो सोचता है। थैंक यू लिपिका मैडम, वेरी वेरी सटनली, एकदम आसानी से आपने समझा दिया मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू। तो इट मीन्स कि मन और दिमाग एक नहीं है, तो क्या है? तो हम ज्यादातर बोलते हैं, जैसे मैडम ने कहा कि मुझे मीठा खाना है, मन होता है। तो मन यानी जो कहीं पे हमारे शरीर से ऊपर उठ के हमें, हमारे दिमाग को मैसेज देता है कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन हम उसको हमारे दिमाग के साथ जोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग प्रोग्राम्ड है, काफी सारी चीजों से प्रोग्रामिंग हुआ है। हम पैदा हुए और तब से हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ हम जमा करते आ रहे हैं, जिसके वजह से हम मन और दिमाग के बीच का अंतर भूल गए हैं। तो अगर हमें स्पिरिचुअली स्ट्रोंगर होना है, तो सबसे पहले हमें ये डिफरेंस जानना होगा कि मुझे आज मन, मेरी आत्मा मेरे को बोलती है कि आप तू जाके मीठा खा के आ, किसी को हेल्प करके आ, या मेरा दिमाग बोलता है कि जा उसको हेल्प कर, तू उसको हेल्प करेगा ना तो तेरे को फायदा होगा। जैसे काफी एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ना, आप जाके यहाँ पे दूध चढ़ाओ, गाय को चारा खिलाओ, कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, तो आपका ये फायदा होगा। तो ये सब प्रोग्रामिंग कहाँ है, हमारे मन में या दिमाग में? दिमाग में, राइट। लेकिन मन क्या बोलता है, अरे किसी गरीब आदमी को देखा, अरे बेचारे को भूख लगी, अभी जाके उसको खाना खिला दिया। तब वो नहीं सोचता है कि मैंने उसको खाना खिलाया तो उसका मुझे क्या फायदा होगा। तो जब हम डेली रूटीन में थोड़ी छोटी छोटी बातों में हम अगर समझना शुरू कर दे कि वेदर इट इज माई माइंड और माई ब्रेन, तो हमें बहुत आसानी होगी आगे बढ़ने में स्पिरिचुअली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा क्या है? एनीबडी प्लीज एक्सप्लेन टू मी। जितना नॉलेज आपको है उससे कम ही मेरे को है, प्लीज। ये तो सिर्फ रिसर्च किया है क्लास के लिए, इसलिए यहाँ बोल पा रही हूँ, बाकी मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है। तो आत्मा क्या है, अगर कोई मुझे ज्ञान दे सके तो, छोटे शब्दों में, सिंपल शब्दों में। यस लिपिका जी। मैं बताऊं, आत्मा एक्चुअली वो है, जो हम लोग समझते हैं, जितना हम पढ़ते हैं कि वो अविनश्वर है, उसका डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है। आत्मा हम हमारे शरीर में जुड़ जाता है बिकॉज ऑफ कर्मा बैलेंस करने के लिए। आत्मा एक्चुअली उसका कोई उसका कोई लॉय खय, हम लोग बंगाली में बोलते हैं लॉय खय नहीं है, और उसका कोई चेंज नहीं होता। आत्मा आत्मा ही रहता है। ओके, ये हम नॉर्मली बोलते हैं, बट व्हाट कुड बी, कभी किसी ने सोचा है कि आत्मा कैसी दिखती होगी, कैसी होगी, क्या होगा, व्हाट इज इट? क्या खाती पीती है, किसके ऊपर चलती है, क्या होता है? कभी हमको ऐसे थॉट्स आते हैं कि क्यों ऐसा है कि आत्मा है तो चल निकल गई तो आदमी नहीं रहता है, शरीर खत्म हो जाता है। तो इन शॉर्ट लेट अस मूव अहेड। जो मैंने थोड़ा बहुत समझा उसके ऊपर, पहले हम जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी बात हुई थी कि ब्रेन क्या है, उसके ऊपर एक खाली समझ लेते हैं कि ब्रेन इज अ फिजिकल ऑर्गन। ये हमारी खोपड़ी जो स्कल बोलते हैं उसमें स्थित एक भौतिक अंग है, एक फिजिकल ऑर्गन है, जो न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स से बना हुआ है। ओके, उसका काम क्या है? हमारी जितनी भी ऑर्गन्स हैं फंक्शंस करते हैं, जो मोटरी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करना, सेंसेस को पकड़ना, और हमारे बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी कार्य करना है हमारे शरीर को, उसको रेगुलेट करना, उसको ठीक से करना। क्योंकि अगर मैं खाना खाने बैठी और मैं खाना इधर डाल दिया तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अगर मैं बोलने की ट्राई करती हूँ और मुंह बंद रखा और कान से बोलने की कोशिश करूंगी, इट कैन नॉट वर्क। So all this is controlled by the brain, the physical organ brain. और माइंड क्या है? माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट, मन एक चेतना, विचारों और भावनाओं को अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज, क्योंकि ये डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट किया है, तो मैं इसमें माइंड को ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हम क्या बोलते हैं? कि जागरूकता। आई एम अवेयर, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। मतलब
अगर मैंने आज गैस के पास मेरा हाथ जल गया तो मेरे माइंड ने उसको रजिस्टर कर लिया। कितनी बार हमने देखा है कि कुछ लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक जन, दे हैव अ बीमारी कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया और दिस फोबिया और दैट फोबिया। तो वो सब क्यों होता है? अगर मेरा आज मैं अगर कहीं जल के कल मुझे कुछ हो गया तो मे बी नेक्स्ट बर्थ आई मे कैरी इट विथ माई सेल्फ इन माई माइंड कि बाप रे इतनी जो पीड़ा हुई थी या जो पेन हुआ था वो सब कहीं ना कहीं रजिस्टर मेरे माइंड में हुआ है। तो नेक्स्ट बर्थ में इवन इफ आई सी अ स्मॉल मैच स्टिक आई मे गेट स्कैर्ड। किसी का ऊपर से कूद के सुसाइड किया हो किसी ने और फिर नेक्स्ट बर्थ में उसको हाइट्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सब जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हम करते हैं, ओके, वो हमारे माइंड में रजिस्टर होती है। जैसे छोटे बच्चे का मैंने बीच में आई फॉरगॉट आई कुड हैव पुट दैट वीडियो, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था वे छोटे बच्चों को हु कुड बेयरली सिट, हाँ बच्चे लोग चल भी नहीं पाते थे, 8-9 महीने के बच्चों को एक रूम में बिठा दिया था और एक स्नेक को छोड़ दिया था। ओके, इट वाज अ हार्मलेस स्नेक। बाहर कांच का विंडो में से पेरेंट्स देख देख के पैनिक हो रहे थे और बच्चे लोग उसके ऊपर हाथ घुमा रहे थे, उसके आसपास घूम रहे थे, उसके ऊपर जाके उतर रहे थे। दे हैड नो फियर बिकॉज their माइंड वाज नॉट प्रोग्राम टू बी स्कैर्ड ऑफ द स्नेक। लेकिन पेरेंट्स को अंदर से इतना फियर हो रहा था, कह रहे मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे को ये हो गया तो वो काट लिया तो खा लिया तो बाइट किया तो। सो भले वो हार्मलेस स्नेक है, हमको पता भी होता है, बट दैट फियर इज सो डीप रूटेड इन अवर माइंड्स कि वो हम हमारे नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी कर सकते हैं। तो आई फील कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये बर्थ मिला है जहां हमें ये सब नॉलेज को एक्सेस है, हमें ये सब नॉलेज मिल रहा है। तो हमारे जितने भी वीक पॉइंट्स है, चाहे वो एंगर हो, हंगर हो, एक्सेसिव हंगर, लस्टफुल हंगर जिसको सर बोलते हैं, या कोई भी मेरे ड्रॉबैक्स हो, फियर हो, कुछ भी हो, अगर मैं कॉन्शियसनेस के साथ उसको इस जन्म में ओवरकम कर पाई तो मेरा नेक्स्ट बर्थ विल बी टोटली फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव हैबिट्स और नेगेटिव कॉन्शियसनेस। ओके, तो मैं कितनी अच्छी लाइफ जी पाऊंगी अगर मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा, किसी से गुस्सा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आई विल राइज अबव फ्रॉम व्हाट आई एम टुडे। मैं जहां पे आज जन्मी हूँ उससे कुछ बेहतर बन सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीवीएच इसमें इतना ब्यूटीफुली हमको हेल्प करता है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें कि लाइक इट इज नॉट एन ऑर्गन बट रादर द रिजल्ट ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। मतलब ब्रेन में जो जो मैसेजेस आ रहे हैं कि आज तू शिप में जाएगी तो शिप में कहीं पे वहां पे साइक्लोन आ गया, टाइफून आ गया, तो वो रोटेट करके शिप डूब गई, तो ये मेरा ब्रेन का एक्टिविटी ने एक फियर पैदा किया जो जाके मेरे माइंड में सेटल हो गया। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अवर ब्रेन एंड अवर माइंड, तब भी हम सोल के तरफ बढ़ पाएंगे। अगर यहाँ पे ही हमारा डिफरेंस अटक गया ना तो हम मन और सोल के बीच में भी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, माइंड और सोल के बीच में भी हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो आत्मा क्या है? सिंपल भाषा में इट इज अ स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ अ पर्सन जो ना मरती है और मरने के बाद भी अमर होती है, जो नश्वर है, अनश्वर है, आई एम सॉरी, और जीवात्मा या ऊर्जा जो किसी भी जीव को जीवित रखती है। सो इन शॉर्ट आई बिलीव इट इज एन एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कीप्स एनीथिंग अलाइव। किसी भी वस्तु जीव को जीवित रखने के लिए जिस ऊर्जा की हमें जरूरत होती है वह वो ऊर्जा है। जब वो शरीर को छोड़ देती है तो वो ऊर्जा जाके उसके उच्चतम ऊर्जा जो है सुप्रीम सोल जिसको हम बोलते हैं वहां पे जाके वो ऊर्जा उसके साथ मिक्स होती है। फिर वहां पे आगे जाके कार्मिक बोर्ड है जहाँ पे काफी सारी स्पिरिचुअल गाइड्स और एंजल्स बैठे हैं जो ये सोल यहाँ से करके गई है उसका वो लोग हिसाब किताब करेंगे, लेजर्स बनाएंगे और फिर वापस उस ऊर्जा को दूसरे शरीर में भेज देंगे नए कर्म को बैलेंस करने के लिए। अगर ये इतनी सिंपल सी थियोरी हम आज समझ ले कि व्हाट इज अ सोल, व्हाट इज अ माइंड, व्हाट इज अ ब्रेन एंड व्हाट इज अवर बॉडी, वी ऑल नो। ओके, तो कितना इजी हो जाएगा। सोल के पास सोल क्या क्या कैरी करती है? वैल्यूज, मॉरल्स, मीनिंग इन कम्युनिटीज।
कभी भी अगर आग लगी तो कोई दूसरों को पहले बचाने जाएगा या पहले खुद को बचाएगा? तब पहले खुद को बचाएंगे। आजकल काफी सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें हैं कि इफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ अदर्स। ओके, तो अग्री, पहले आप सेफ हो जाओ, लेकिन आप जाके अकेले बैठ गए, कहीं पे आग लगी है और आप अपने आप को सेव करके बैठ गए, तो व्हाट आर यू? यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। ओके, आप इस शरीर का ध्यान रख रहे हो। लेकिन इफ यू आर अ सोलफुल पर्सन, अ सोलफुल बॉडी जिसमें सोल एक्टिव है, जिसमें अवेयरनेस है, तो वो क्या करेगा? वो दूसरों की भी हेल्प करेगा, कम्युनिटीज को भी हेल्प करेगा। ओके, उसको अपना एक सेंस ऑफ पर्पस है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, इस सोल का यहाँ काम क्या है। मेरे सोल का पर्पस एंगर निकालना है, लस्ट निकालना है, या एनीथिंग। आई हैव टू राइज, एक पर्पस है। मुझे नहीं पता कि मेरे में क्या क्या खामियां हैं, लेकिन मुझे जो कुछ भी, मैं आज अगर यहाँ पे हूँ तो मुझे यहाँ पे नहीं आना है, मुझे ऊपर राइज होना है। वो मेरा पर्पस है कि यस, आई हैव टू राइज अबव फ्रॉम वेयर आई वाज सेंट इन दिस वर्ल्ड। ओके, सेकेंड, एक्टिव एथिकल प्रोफेशनल होते हैं, या वेरी प्रोफेशनल इन द सेंस नॉन अटैच्ड होना होता है सोल को। अगर मेरी सोल सबके साथ, हर चीज, हर वस्तु, हर इंसान के साथ अटैच होते जाएगी, तो जब टाइम आएगा वो यहाँ पे इस प्लेन को छोड़ के आगे बढ़ पाएगी? नो। तो व्हाट डज प्रोफेशनल मीन हियर? इट हैज टू बी नॉन अटैच्ड। ओके, कि समझना है कि मैं एक सोल हूँ, मेरी जर्नी है, मुझे यहाँ पे जो जो करना है मैंने किया, मैंने लोगों की हेल्प भी की, मैंने अच्छे अच्छे कार्य भी किए खुद के लिए, दूसरों के लिए, और अब मुझे ये सब छोड़ के आगे बढ़ना है, यहाँ पे अटक के रहना नहीं है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ कैन वी मूव अहेड? जब हम हमारा कनेक्शन ना कि यहाँ के छोटे 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 बाबा लोग के साथ करेंगे, हम डायरेक्ट हमारा सोल का कनेक्शन ईश्वर के साथ करेंगे, गॉड के साथ करेंगे, जिस गॉड को हम एवरी डे थैंक यू और सुप्रीम गॉड का प्रेयर हम एफर्मेशंस में करते हैं। ओके, दैट इज द सोल। माइंड क्या हो गया? नॉलेज जमा करता है, डिस्पोजिशन, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिसेस, रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट, ये सब यहाँ पे जो छोटी छोटी हमारे साथ चीजें होती है, उसको अगर हमने कलेक्ट किया माइंड में और उसको जमा रखा, तो एक सिंपल भाषा में अगर बोले तो हमारा अगर मैं किसी बलून को ऑक्सीजन के साथ भरूंगी तो विल दैट राइज हायर, या नाइट्रोजन वाला बलून ज्यादा ऊपर जाएगा? एनीबडी? इफ ऑल आर नॉट स्लीपिंग, कौन सा बलून ज्यादा ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन वाला या नाइट्रोजन वाला? एनी साइंस? हाइड्रोजन वाला मैडम, नाइट्रोजन वाला। व्हाई? बिकॉज वो गैस मैडम हल्का वो हल्का होता है, वो हल्का होता है इसलिए। यस यस यस, बिकॉज इट इज हल्का। तो हम यहाँ पे हमारे माइंड में, नॉट जस्ट ब्रेन, माइंड में भी जितना एक्यूमुलेशन करते हैं ना, जितना उसको डिस्पोज करना शुरू कर देंगे डेली हैबिट्स से कॉन्शियसली, उतना हम इजीली ऊपर उठ पाएंगे। ओके, सो वी हैव टू बिकम नाइट्रोजन, नॉट ऑक्सीजन। हमें हल्का होना है। तो जब भी हमारी मेंटल बॉडी में हम जितना कुछ यहाँ पे ब्रेन में रखते हैं, अरे मेरे हस्बैंड ने मुझे 25 साल पहले मुझे ऐसा कहा था, मेरी सास ने मुझे ऐसा कहा था, मेरी फ्रेंड ने ये किया था, ये सब ब्रेन से धीमे 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 अगर मैं 25 साल तक उसको जमा करके बैठी हूँ, तो इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन माई माइंड विच इज गोइंग टू गो विथ माई सोल। और वो माइंड को मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगी तो बेचारे को ऊपर चढ़ने में कितना प्रॉब्लम आएगा। इतना वजन लेके बैठी है, जो सास उसके साथ नहीं चलने वाली है, जो पति उसके साथ नहीं चलने वाला है, जो फ्रेंड साथ में नहीं चलने वाले, उन सबको लेके बैठी हुई है और ऊपर चढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सर बोलते हैं, इफ योर सोल वांट्स टू राइज यू हैव टू डिसॉल्व योर माइंड। हमें हमारे माइंड को डिसॉल्व करना होगा। ओके, और बॉडी का तो क्या है, बॉडी तो खाना पीना ऐश करना, दैट्स ऑल। तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बॉडी के साथ ही अपने आप को रिलेट करते हैं। मैं पास्ट लाइफ में मानता नहीं हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स। नो, दिस इज ओनली वन लाइफ वी हैव, एक ही लाइफ तो मिला है, हमको मजा करने दो, हमको ऐश करने दो। डन, देयर लाइफ इज स्टक ओनली टू देयर बॉडी। देन सम पीपल, उनका लाइफ इज स्टक टू देयर माइंड। तो सोल लेवल तक पहुंचने के लिए हमें पहले बॉडी की नेसेसिटी से बाहर निकलना होगा, माइंड के वेटेज से बाहर निकलना होगा, तभी हम हमारे सोल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो जब हम सोल के साथ
कैसे कनेक्ट करते हैं, पीवीएच हमें कैसे हेल्प करता है, लेट्स गेट इनटू दिस. नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्लास, दैट इज पीवीएच स्पिरिचुअल अफर्मेशंस. यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज अनम्यूट एंड आस्क, अदरवाइज विल मूव अहेड. I think everybody is clear. Okay, that's great. So now, first, divine fire. तो पीवीएच में 1-1.5-2 साल पहले जो क्लासेस होते थे रेगुलरली, उसमें लोगों ने इतने सारे टेस्टिमोनियल्स डिवाइन फायर के लिए दिए हैं कि शायद हमारे पास अभी उसकी गिनती भी नहीं है. तो लेकिन इसमें मैं थोड़ा कुछ ऐड करूंगी डिवाइन फायर में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइन फायर? काफी लोग पुराने हैं और काफी नए भी हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिवाइन फायर. सर ने अभी वीडियो में बहुत छोटे में समझाया कि व्हाट इज डिवाइन फायर. तो कभी भी कोई भी फायर होता है, जैसे हम गैस लाइट करते हैं या माचिस लगाते हैं, तो वो फायर में अगर हमारा हाथ गया या माचिस का एंड भी हमारे हाथ में आ गया, तो हमारा हाथ या उंगली हमारी जल सकती है. ओके, पेनफुल होता है वो, इट विल बर्न. और पूरे के पूरे फॉरेस्ट को भी आग लगा देते हैं ये फायर्स, और सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है. लेकिन वही अग्नि, जब दिव्य अग्नि है, मतलब सूर्य देवता, हम उनको देवता क्यों बोलते हैं? वो साक्षात अग्नि है हमारे सामने. अगर सूर्य देवता नहीं थे, जब भी हम लोग बाहर कोविड में नहीं जा पा रहे थे बाहर इन द सनलाइट एंड एवरीथिंग, काफी सारे लोगों ने विटामिन D3 की टैबलेट्स, अपराइज D3 वेरी फेमस, अपराइज हफ्ते का 1 मेडिसिन खाओ. ओके, काफी लोगों ने ली थी क्योंकि वो लोग D3 डेफिशिएंट हो गए थे सनलाइट ना मिलने की वजह से. तो जो सन है वो हमारे साक्षात ईश्वर है जो लाइट देते हैं. अगर सन नहीं है तो हमारा ना खाना उगेगा, ना क्लाउड्स बनेंगे, ना पानी आएगा. तो इतने जो साक्षात्कार कर रहे हैं उन ईश्वर को हम दिल से थैंक यू बोलते हैं. और वही एग्जाम्पल लेके हम डिवाइन फायर के साथ आगे बढ़ते हैं कि डिवाइन फायर मतलब जो सन हमें हीट देते हैं, वो हीट सुप्रीम गॉड से ही उनको मिली है, राइट, जिन्होंने धरती का या सब कुछ का निर्माण किया है. तो आप सोचिए कि उनकी ऊर्जा कितनी होगी, उनकी ऊर्जा कितनी पावरफुल होगी. अगर उनकी ऊर्जा डिस्ट्रॉयर वाली हो जाए तो क्या होगा? मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, आज सबको गर्मी में 50 डिग्री, 48 डिग्री, 42 डिग्री सबको भारी पड़ रहा है. ओके, लेकिन ईश्वर ने यही सबको कवर अप करने के लिए पेड़ पौधे लगाए थे, बनाए थे, जो हम लोग इंसान बहुत अकलमंद प्रजा टेक्नोलॉजी के नाम पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो जो दिव्यता वाली ऊर्जा होती है, दैट इज डिवाइन एनर्जी, वो सिर्फ नेगेटिविटी को दूर करती है, ना कि हर चीज को. ओके, सब कुछ जला के नहीं रखती है, वो सिर्फ क्या जलाती है? जो कुछ भी नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, उसको जलाती है दिव्य अग्नि. अग्नि का काम है जलाना, दिव्य अग्नि का काम है नकारात्मकता को जलाना. सिंपल. ओके, तो इसमें हम बोलते हैं मैं दिव्य अग्नि का प्राणी हूं, मैं वह पवित्रता हूं जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं. इसका मतलब आई एम अ बीइंग ऑफ डिवाइन फायर, मतलब मैं एक दिव्य अग्नि का प्राणी हूं. आई एम इनवाइटिंग डिवाइन फायर टुवर्ड्स मी. ओके, मैं वह पवित्रता हूं जिसकी ईश्वर, अभी ईश्वर मतलब क्या यहाँ पे? हु इज गॉड इन शॉर्ट? एनीबडी? हमारे आत्मा के पेरेंट कौन है? ईश्वर, गॉड. गॉड इज द क्रिएटर of our soul, he is the parent of our soul. Okay, तो मैं वह पवित्रता हूं जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं. तो गॉड कितने प्योर है? अभी यहाँ पे कितने भी पेरेंट्स हैं, वो चाहेंगे कि उनका बच्चा ड्रग्स पिए, ले, या सिगरेट स्मोक करे, या अल्कोहल ले, या खराब खराब आदतें करे? नो, नो पेरेंट्स विल लाइक दैट. दे ऑल वांट देयर चिल्ड्रन टू बी हैविंग गुड वैल्यूज, के अच्छे बच्चे हों, अच्छा अच्छा बोले, सीखे, समझे. ओके, तो वैसे ही हमारे ईश्वर क्या चाहते हैं कि हमारी ये जो आत्मा है, जो दिव्य अग्नि को
बोल रही है कि मेरे पास आओ, वह आत्मा इतनी पवित्र बने जितने पवित्र ईश्वर है। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ मैं दिव्य अग्नि का प्राणी हूं। आई एम द बीइंग ऑफ डिवाइन, सॉरी, आई एम द, oh God, I am the being of divine fire. I am the purity God desires. मैं वह पवित्रता हूं जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। ओके, माई सोल इज अ सोल ऑफ डिवाइन फायर। नाउ इसके आगे आप जो भी लिखते हो, लाइक कैसे डिवाइन फायर फॉर्म करना है अगर आप किसी सिचुएशन में हो, तो एक तो डिवाइन फायर पॉइंट नंबर 1 आप हर किसी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि किसी XYZ को क्या एनर्जीज है, अगर उनको ब्लैक मैजिक है, कुछ भी एनर्जीज उनको आ रही हैं और आप उनके लिए डिवाइन फायर करते हो, ओके, तो क्या होगा, वो एनर्जीज आपको भी हर्ट कर सकती हैं, बिकॉज आपको पता नहीं कि वो एनर्जीज उनके पास उनके किस कर्मा के वजह से आ रही है। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा कोर्ट में केस चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि जो जज वहां पे बैठे हैं तो मेरे हक में डिसीजन दे। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस जज का नेम नहीं लेना है, उनका नाम नहीं लेना है, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मेरे केस के जो जज हैं वह दिव्य अग्नि के जज हैं, मेरे केस के जो जज हैं वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। तो अगर मेरे और उस जज के बीच में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, जिसके वजह से उनको मुझे देख के चिढ़ आती है, गुस्सा आता है और उनको लगता है कि मुझे इसके फेवर में केस नहीं देना है, तो वो नेगेटिव एनर्जी कम होते जाएगी एंड द डिसीजन विल बी इन माय फेवर। ओके, दिस इज हाउ डिवाइन फायर वर्क्स। काफी लोग, मोबाइल घूम गया, डिवाइन फायर शुरू, टीवी खराब हो गया, माय टीवी इज अ टीवी ऑफ डिवाइन फायर, माय टीवी इज द प्योरिटी गॉड डिजायर्स। काफी लेडीज लोग ने ऐसा भी बोला था कि हम लोग साल की मिर्ची भरते हैं तो उसमें हाथ डाल के उसको जब स्टफ करते हैं तो हमारे हाथ बहुत जलते हैं, तो हमने जब भी डिवाइन फायर करके वो मिर्ची भरी तो हमारे हाथ में जलन नहीं हुई है, ऐसा भी टेस्टिमोनियल आया है। ओके, बट आई somehow feel, this is my personal view, divine energy is no चलता फिरता एनर्जी। डिवाइन एनर्जी का मतलब क्या है, इट इज गॉट सो मच ऑफ पावर कि वो आपके आसपास की नेगेटिविटी निकाल सकती है, जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसको निकाल सकती है, आप जो भी अच्छा चाहते हो वो आपको अचीव करने में हेल्प कर सकती है। तो उस एनर्जी को छोटी मोटी चीजों के लिए या मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए ना यूज करें। सर ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है, सर ऑलवेज सेज डिवाइन फायर करना है तो वॉर जोन के लिए करिए। सर क्यों हमें बोलते हैं कि आप ही करो, एंड व्हेन हम सर को पूछते हैं कि सर हमें इस चीज के लिए डिवाइन फायर करना चाहिए कि नहीं, अगर वो कुछ बहुत बड़ा है, सपोज ईरान इराक का वॉर हो रहा है, तो हम खुद के हिसाब से हम उसका डिवाइन फायर नहीं करते हैं सर का परमिशन लिए बगैर, बिकॉज देयर कुड बी लॉट्स ऑफ इनर वर्ल्ड कनेक्शंस और एनर्जीज जो इस वॉर को पुश कर रही होंगी कि अरे ये वॉर होनी चाहिए, ये वॉर होनी चाहिए। तो हम लोग विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट यानी सर का गाइडेंस के बगैर हम नॉर्मली डिवाइन फायर स्टार्ट नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट, डिवाइन फायर तब भी ही काम करेगा जब डिवाइन को पता है कि ये काम आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कॉलेज ए में एडमिशन चाहिए लेकिन मुझे बी में मिला है और मैं बी के लिए डिवाइन फायर करती हूँ, लेकिन मुझे बी में एडमिशन नहीं मिला। व्हाई? डिवाइन नोज दैट लॉन्ग रन में आपको ये ए वाला ही काम आने वाला है। ही नोज व्हाट इज गुड फॉर योर सोल एंड यू। तो काफी लोग बोलते हैं मैंने इसका कितना डिवाइन फायर किया लेकिन मेरे को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, यूजलेस है, ये है वो है, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड प्लीज। सो एवरीवन, डिवाइन फायर इज अ वेरी प्योर थिंग और उसका मिसयूज ना करें और उसका यूज वहीं पे करें जहां पे आपको हायर नेसेसिटी है कि यस मुझे इसका यूज करना है। पॉइंट नंबर 2, इट विल वर्क ओनली इफ इट इज राइट फॉर यू। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब नहीं करना है, लेकिन डिवाइन को पता है, ईश्वर को पता है कि आपने कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए काबिलियत नहीं है, तो वो आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, आपको जॉब नहीं रखेंगे। तो बेस्ट थिंग जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, अष्टांगिक मार्ग ऑफ गौतम बुद्ध,
एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट कम्स टू योर लाइफ. ओके, हमें जो चाहिए हमें वो ही चाहिए. हमें आज भी एक्सेप्टेंस पावर नहीं है. तो व्हेन वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड फॉलोइंग गौतम बुद्धा के अष्टांगिक पथ, हम जब भी एक्सेप्ट करते हैं हर पीड़ा का कोई वजह है, हर पीड़ा का अंत है, उसके लिए हमें क्या करना है, वो जब भी हम पहले समझते हैं तो हमें ये एक्सेप्टेंस आ जाता है कि डिवाइन फायर भी वहीं पे काम आएगा जहां मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला होगा. ओके, ये सब इंटरकनेक्टेड है. इट गोस हैंड इन हैंड. इट इज नॉट लाइक एक कर लिया दूसरा कर लिया. ओके, दिस इज डिवाइन फायर. दिव्य अग्नि क्या करेगी? दिव्य अग्नि आपके अंदर और आसपास की सारी नकारात्मकता को जला देगी. दिव्य अग्नि नकारात्मकता को दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करती है. काफी लोग बोलते हैं जो नए होते हैं उनको डाउट्स आता है कि मैं डिवाइन फायर करूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा. तो मेरे को कोई बोलिए, जो भी इंसान या व्यक्ति ईश्वर में मानता है वो कभी मानेगा कि उसके साथ कुछ बुरा ईश्वर कर सकते हैं? नो, राइट? गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विथ यू. व्हाटएवर आपके साथ जो भी बुरा होता है, मेरे साथ जो भी बुरा होता है, वो मेरे कर्मों का फल है. ईश्वर किसी का बुरा नहीं करते हैं. उन्होंने तो सिर्फ हमारा निर्माण करके हमें नीचे डाल दिया कि जाओ भाई ऐश करो, कर्म बांधो, वापस आओ, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो और अगले में उसको भुगतो. ओके, तो प्लीज कीप इट वेरी क्लियर इन द माइंड कि केवल नकारात्मक ऊर्जा को ही जला देगी, ना कि हमारी सकारात्मक ऊर्जा को. यहाँ पे जो अभी एक्सप्लेन किया उसको स्प्लिट किया गया है. मैं वह पवित्रता हूं जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं का मतलब है आप शरीर, मन और आत्मा हैं. दिव्य अग्नि मन और आपकी आत्मा के लिए है. ईश्वर आपकी आत्मा के पिता हैं. ईश्वर चाहते हैं कि आपकी आत्मा प्योर हो, शुद्ध हो. अब आप पवित्र कैसे बन सकते हैं? एनी आइडियाज? ये पॉइंट्स को नहीं देखे तो हमारी आत्मा को हम पवित्र कैसे बना सकते हैं? कल किसी को मैंने पूछा, किसी का कॉल पे बात हो रहा था तो बोला कि आपको अपनी ऑरा को अगर क्लीन करना है, अच्छा रखना है, आपकी ऑरा को बड़ा करना है, तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं ऑरा क्लीनिंग करूंगी. इज दैट ट्रू? ऑरा क्लीनिंग करने से आपकी ऑरा बड़ी होगी, स्ट्रांग होगी? नो, तो नहीं, कैसे होगी नहीं. मैडम? अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करने होंगे. वेरी नाइस, थैंक यू. अच्छे कर्म करने होंगे. रीटा बेन, थैंक यू. अच्छे कर्म. काम करो, सॉरी वीणा बेन, किसी की हेल्प करो, डिड नॉट गेट यू मैडम. किसी की हेल्प करो. ओके, वेल, हम जब अपनी आत्मा पे कंसंट्रेशन शुरू करेंगे, ओके, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा, स्पिरिचुअल हाइजीन मतलब यहाँ वहां भटकना नहीं. हमें अपने आप को ऐसे करके एक सोल लेवल पे आना है, हमारे सोल पे आना है, यहाँ वहां. आज एक और बात मुझे शेयर करनी है इस पॉइंट पे. लेट मी गो अहेड विद इट. सर के एक वीडियो में मुझे बहुत अच्छा नॉलेज मिला था. यहाँ पे कितने लोग हैं कि मैं बोल बोल के थक गई हूँ, 45 मिनट से बोले जा रही हूँ मैं. तो टेल मी समथिंग. इफ मुझे कुछ चाहिए, ओके, मेरे को एक 2 BHK का फ्लैट लेना है, ओके, तो मैं मंदिर में जाती हूँ, भगवान को बोलती हूँ मुझे 2 BHK का फ्लैट चाहिए. मुझे जाके मंदिरों में या कहीं भी मांगना चाहिए या नहीं? प्लीज, आई वॉन्ट यू, आप में से जो भी इसमें मुझे नॉलेज दे सके प्लीज दीजिए. विथ वाई, यस और नो, विथ वाई. अगर मुझे कुछ चाहिए, अगर मुझे एक हीरे का हार चाहिए तो मैं मंदिर में भगवान के पास जाऊं, अरे भगवान मुझे प्लीज आप एक हीरो का हार दिलवा दीजिए, मैं आपके पास आके मेरा इनकम का 10% आपको चढ़ाऊंगी,
मैं ये करूंगी वो सब करना चाहिए या नहीं? यस लिपिका मैम। हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही ने कुछ देर पहले बताया कि हम हमारे जो कुछ हमको मिलता है, जो अच्छा होता है हमारे लिए वही मिलता है हमको, और जो हमारा कर्म है उसके ऊपर हम लोगों को मिलता है। तो अगर हम चाहे वह यह मंदिर में जाके फुल लेट जाए तो भी नहीं मिलेगा, अगर हमारा कर्म सही नहीं हुआ तो। Okay, thank you, madam. You are listening very properly. Thank you. Okay, thank you, Aarti ji. Sorry, yes, Aarti ji. Thank you, Lipika ji. आरती मैडम बोलिए। उसके लिए खुद को भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए Sorry, खुद ma'am? को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज। उसके लिए खुद को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, उसके लिए खुद को नहीं, एफर्ट्स का बात नहीं है मैम। द क्वेश्चन इज कि मंदिरों में या लोगों के पास किधर भी जाके, मतलब मंदिर बेसिकली गोइंग टू द Okay. टेम्पल एंड आस्किंग आई वांट दिस और आई डोंट वांट दिस। ओके, मुझे ये लड़के से शादी नहीं करनी है, मुझे उसी लड़के के साथ शादी करनी है, मांगना चाहिए या नहीं? और आपके जवाब का जस्टिफिकेशन चाहिए मुझे। हमें काबिलियत मांगनी चाहिए कि हम ऐसी काबिलियत दो जिससे हम ये प्लीज खरीद थोड़ा सके। जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही है। हमें भगवान के पास यह काबिलियत मांगनी चाहिए कि हमें ओके, भगवान से काबिलियत मांगनी चाहिए। रश्मि जी, आपने हैंड रेस किया है। मैम मेरे हिसाब से अगर आप मंदिर में भगवान को देख रहे हो तो आप मंदिर में जाकर आप ये कह सकते हो कि मेरे हिसाब का अच्छा घर मिले। उसको कोई डायमीटर में नहीं डाले कि मेरे को 2 BHK ही होना चाहिए या इसी एरिया में या इसी बजट में। तो जो बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। और जहाँ तक मेरा थिंकिंग है कि मुझे नहीं लगता कि भगवान कहीं मंदिर वगैरह में है, वो मेरे अंदर है। तो मैं खुद से और ऊपर देख के भगवान से मांग लेती हूँ अगर मुझे कुछ चाहिए होता है। बट वो उसको मतलब मैं कुछ क्लोज स्ट्रक्चर में नहीं मांगती हूँ, मैं मांगती हूँ एक्चुअली। ओके ओके, थैंक यू। आई एम नॉट फुल्ली हैप्पी विद दैट आंसर रश्मि जी, उसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगी। दीपक जी ने हैंड रेस किया है। यस दीपक जी। मैं बोलना चाहूंगी, मैं वीणा, मैं ऐसा बोलूंगी कि भगवान को कुछ नहीं मांगना चाहिए। हम डिवाइन फायर करते हैं रोज, तो हमारे लिए जो सुटेबल है वो भगवान हमको देगा ना, उसको मांगने की जरूरत क्या है, ऐसा मैं समझती हूँ। लेकिन मैडम जब भी दुख आते हैं तो हम मांगते तो है ही। यदि हम मीठा मिठाई खाते हैं तो थोड़ा सा तीखा भी खाना चाहिए, तो उसका मजा आता है। यानी जीवन में सब सुख ही सुख है, तो हमको सुख की कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी ना, थोड़ा सा दुख भी चाहिए ना, तो सुख सुख हमको अच्छा लगेगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि भगवान मेरे लिए जो अच्छा है वो ही देंगे ना, सब अच्छा ही अच्छा देंगे, तो अच्छे का तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, थोड़ा सा दुख भी चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। इसलिए भगवान को मैं थैंक यू बोलती हूँ, जो भी दिया है मेरे लिए बहुत अच्छा है मेरे लिए, और मेरे लिए भगवान अच्छा ही करेंगे, ऐसा विश्वास रखती हूँ मैं। दैट्स नाइस, थैंक यू वीणा मैडम, ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें कि जैसे यहाँ पे हमें 4 आंसर्स मिले। ओके, लिपिका जी ने बोला, रश्मि जी ने बोला, 1 मिनट मैं थोड़े हैंड्स डाउन कर देती हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा नेक्स्ट में किसी का। ओके, वापस हैंड रेस किए है क्या? ओके, नो, वेल, जैसे लिपिका जी ने बोला कि एक्सेप्टेंस, और वीणा जी ने बोला कि एक्सेप्टेंस, कि मुझे जो मिलेगा और मैं जो ड्यू मेरे पास है वो मुझे मिल ही जाएगा। अभी मैं रश्मि जी का यहाँ पे पकड़ती हूँ। ओके रश्मि जी, नाउ टेल मी वन थिंग, आपने खुद के सेंटेंसेस को कितना कॉन्ट्रडिक्ट किया, सोचो। मैं मंदिर में नहीं मांगूंगी, मैं घर पे बैठ के भगवान से मांग लूंगी, खुद में काबिलियत होनी मांगूंगी, राइट? यू सेड दैट। हाँ, तो भगवान से अगर कुछ चाहिए तो इतनी दिव्य ऊर्जा आई फील आप मांगो कि आप एक पॉइंट पे, जैसे वीणा मैडम ने बोला ना कि सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होना है लाइफ में, देयर हैज टू बी अप एंड डाउन। अगर सब कुछ अच्छा होगा ना तो आप अभी पीवीएच के क्लास में बैठे हो, बैठे भी नहीं होते। अगर आपकी लाइफ स्मूथ सेलिंग होती तो आप पीवीएच में ही नहीं आए होते।
अग्री? आप कुछ अच्छी खोज Yes, में ma'am. निकले थे, तभी आप यहाँ पे आए हो. ओके? Yeah. Everyone is coming here in search of something. तो मंदिर में भी जब लोग जाते हैं, ये सर ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया था और समझाया था कि सृष्टि में अगर आप लोग ये बात को मानते हो तो प्लीज नाउ आई नीड योर थम्स अप आफ्टर आई स्पीक दिस, कि अगर सृष्टि में कुछ भी आपको लगता है कि नियंत्रित नहीं है, समथिंग इज लेस, समथिंग इज मोर, कि सृष्टि जब भगवान ने बनाई तभी उन्होंने सब कुछ इक्वल ही बनाया था. डू यू ऑल एग्री टू दिस और नॉट? जितने एग्री करते हैं प्लीज थम्स अप डालिए. ओनली 1 person, 2, 3, 4. Many people don't agree, I think. कि सृष्टि का निर्माण जब भी ईश्वर ने किया था, उन्होंने परफेक्ट बैलेंस्ड सृष्टि ही बनाई थी. ओके? ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा. आप खाली इमेजिन करो कि जब भी भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, जस्ट इमेजिन, देयर वाज ट्रीज, देयर वाज माउंटेन्स, देयर वाज एवरीथिंग. ओके? जैसे जैसे इंसानों की भूख बढ़ती गई, ओके, आज भगवान ने हमारे पास से कोई पैसा लिया है, कुछ लिया है कि मैंने तुमको जो सृष्टि बनाई है तो उस जमीन पे तुम रह रहे हो तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स मुझे दो? नो, भगवान ने कौन नहीं मांगता मांगते. है? किसने डाला है प्रॉपर्टी टैक्स? ये पेड़ हमने उगाए हैं जो पहले से हम एंजॉय कर रहे हैं, माउंटेन्स हमने बनाए हैं, हमें भी सिर्फ काटना आता है, हमें उसका यूटिलाइजेशन नहीं आता है. तो ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है बहुत बैलेंस तरीके से बनाया था. ओके? अब धीमे धीमे जैसे इंसान को अक्ल ज्यादा आती गई, ग्रीड बढ़ते गया, ओके, वैसे वैसे कंपैरिजन, उसके पास मारुति है, मेरे पास तो स्कूटी है, उसके पास बाइक है, मेरे पास तो साइकिल है, ये सब जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे मंदिरों की भूख भी बढ़ती गई कि यहाँ पे लोग आएंगे, भगवान से मन्नतें मांगेंगे, भगवान उनका अगर कोई साक्षात्कार. आज बॉम्बे में आज से 25 साल पहले किसी को पता था कि लाल बाग के गणपति हैं जो इच्छा पूर्ति करते हैं? 25 साल पहले एनीबडी फ्रॉम बॉम्बे 25 years बैक डिड दे नो कि यहाँ पे एक दिन में 50 लाख आदमी आके दर्शन करेंगे? डिड एनीवन नो दैट? प्लीज एनीवन? 25 साल पहले किसी ने लाल बाग के गणपति, बॉम्बे वाले जितने भी लोग हैं, इट इज वेरी फेमस, दगड़ू सेठ इन पुणे, ओके, they were small mandirs. Sai Baba ka mandir Shirdi, I had gone when I was 10 years old. We used to play langdi over there. And so I don't know, I'm not gone since last 6-7 years. लेकिन जब भी लास्ट में गई थी तभी मैंने देखा कि उधर एक आदमी को सिक्योरिटी वाले लकड़ी के साथ पीट रहे, मार रहे, because he was just begging or something. जबकि what some people have said and we have seen in stories that Sai Baba himself कुत्ते को भी नहीं मारते थे, और यहाँ पे तुम आदमियों को कुत्ते की तरह मांग रहे हो. तो ये जब से कमर्शियलाइजेशन शुरू हुआ, टेम्पल्स का पैसा बनाने का काम शुरू हुआ, ओके, तब से इच्छा पूर्ति का मार्केटिंग स्टार्ट हुआ. इस मंदिर में जाओ, यहाँ पे ये इच्छा पूरी होगी, यहाँ पे जाओ ये इच्छा पूरी होगी. तो क्या होने लगा कि सब वहां पे भीड़ बनने लगी, मंदिरों में तो पैसे आना शुरू हो गए. दिस वॉज नॉट माई क्वेश्चन बट दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन क्या था जो शिवा सर ने एक बार समझाया कि सपोज एक मंदिर में मैं जाती हूँ रेगुलरली, ओके, मैं भी जाती हूँ, मुझे अभी रश्मि जी का मुंह दिख रहा है, तो रश्मि जी और मैं दोनों एक मंदिर में रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, ओके. सपोज फॉर एग्जाम्पल, जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए, एक गणपति मंदिर है हम दोनों के एरिया में और लोग बोलते हैं बहुत अच्छा मंदिर है तो हमें जाना चाहिए. मैं भी रोज जाती हूँ, रश्मि जी भी रोज जाते हैं, ओके. मैं जाके सिर्फ हाथ जोड़ के आ जाती हूँ बिकॉज मैं भगवान में मानती हूँ और वो स्वरूप मैंने बचपन से देखा है तो मैं उनको मानती हूँ. मैं हाथ जोड़ के वहां से निकल के आ जाती हूँ. हाँ, ओके, लेट्स मूव वन स्टेप फर्दर. हे भगवान, मुझे 2 BHK का फ्लैट दिला दे, गणपति बप्पा मुझे 2 BHK का फ्लैट दिला दे, मैं मांगती हूँ. और मेरे साथ रश्मि जी भी जाते हैं, गणपति बप्पा मुझे 2 BHK का फ्लैट दिला दे, सेम रिक्वेस्ट, दोनों रोज जाते हैं. दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस, मैं खाली हाथ जाती हूँ, रश्मि जी रोज मिठाई लेके जाते हैं, कभी कुछ हार लेके जाते हैं, कभी फूल लेके जाते हैं, ओके. नाउ वहां पे जो भी एनर्जी है, देयर इज एन एनर्जी देयर, राइट?
तभी तो लोगों की इच्छा पूर्ति होती है ना, उसके बगैर तो नहीं होती है। तो जो भी एनर्जी है वहां पे, जिसको पीवीएच में हम सोल्स बोलते हैं या एनर्जी बोलते हैं, वो एनर्जी किस पे खुश होगी, मुझ पे या रश्मि जी पे? एवरीबडी प्लीज। मैं खाली हाथ जाती हूँ 2 BHK मांगने के लिए, रश्मि जी पूरा भोग लेके जाते हैं एवरी डे, किस पे खुश होंगे? रश्मि जी पे, मिठाई वाले पे। मिठाई वाले पे। रश्मि जी तथास्तु। मैं बताऊं, यस लिपिका जी। एक्चुअली भगवान को तो कुछ नहीं मांगता, भगवान कुछ लेते भी नहीं है, हम जो ले जाते हैं वो हम ही खाते हैं घर में लाकर। तो भगवान को जो मिठाई लेके जाते हैं वहाँ जो सच्चे मन से जाता है, मुझे लगता है उनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे भगवान के जो सच्चे मन से आया है। जो मिठाई बड़ा। लिपिका जी एक मिनट, मैं यहाँ पे भगवान का बात नहीं कर रही हूँ, ओके? मैं मंदिर और भगवान का बात नहीं कर रही हूँ, आप समझे नहीं मैडम। मैं बोल रही हूँ वहां पे एक एनर्जी है, आपको श्योर तो नहीं है ना? आज आप मेरा सोल देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? मेरा शरीर दिख रहा है आपको, राइट? कैन यू सी माय सोल? मेरा शरीर दिखता है तो आप मानते हो कि रीमा जिंदा है। अच्छा। शरीर भगवान का आपने देखा है? नहीं देखा है। तो भी आप भगवान में मानते हो और बोलते हो भगवान के लेके जाते हैं लेकिन हम ही खाते हैं। सी हाउ मच हमारे मन में ही कितने क्लैरिटीज नहीं है मैडम। हाँ, ये सही है। भगवान एक स्वरूप है जिसको हमने बनाया है। देयर इज गॉड, आई एम नॉट डिफाइंग गॉड, ओके? ईश्वर है, भगवान है, हाँ, लेकिन किस स्वरूप में है हमें नहीं पता। जैसे ये रीमा का मुंह आपको अभी दिख रहा है, वैसे आपने भगवान को देखा नहीं है। सो देयर इज वन एनर्जी। तो आपको पता नहीं, अगर रीमा यहाँ पे नहीं, अभी सपोज मैं मेरा कैमरा खराब हो जाएगा लेकिन मैं स्विच ऑफ कर दूं, ओके? तो आपको पता चलेगा ये रीमा बोल रही है या कोई और बोल रहा है? फर्स्ट टाइम आप लेक्चर में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कौन बोल रहा है? नहीं पता चलेगा। तो आपको पता है कि आप जो मंदिर में जाके प्रसाद धरा रहे हो वहां पे सच्ची में आपके भगवान है या कोई और बैठा है? हाँ, वो तो सही है। थैंक यू फॉर योर, जो भी आपने बोला उसके वजह से ये पॉइंट आया, तो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिया। तो अभी मेरे को बोलिए कि अभी जो भी ऊर्जा वहां पे बैठी है वो रश्मि जी मिठाई वाले पे खुश होगी या सिर्फ रोज जाने वाले पे खुश होगी? रोज जाने वाले पे खुश होगी। नहीं, दोनों रोज जाते हैं, एक खाली हाथ जाता है, एक भर के जाता है। लेकिन जो एनर्जी है उसका मिठाई से क्या मतलब? एनर्जी का तो मिठाई से कोई मतलब नहीं है ना, तो मिठाई के लिए अलग से अच्छा, अगर उसको प्रेफरेंस नहीं देगी। अगर वो एनर्जी है, अगर उधर एक सोल है, ओके, देयर इज वन सोल, सपोज एक सोल है उधर, हाँ, जो मरते वक्त उसको इच्छा थी कि मैं बहुत मीठा खाऊं, लेकिन इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो जाके मंदिर में बैठ गया। तो सोल तो नहीं खा सकते ना मैडम, सोल किसी का बॉडी में एंटर करके खा सकता है कि नहीं? हाँ, बॉडी में एंटर करके खा सकता है। थैंक यू यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन टुडे, थैंक यू। वेलकम मैम। अभी जवाब दीजिए, मुझे और भी क्वेश्चन है तो डालिए या आंसर दीजिए कि मिठाई लेके जाएगा उसका इच्छा पूरा होएगा या मिठाई ना लेके जाने वाले का इच्छा पूरा होगा? मुझे अभी भी लगता है कि जो मिठाई लेके नहीं जाए उसका और मिठाई लेके जो जाए दोनों में कोई अंतर नहीं है। ओके, टेल मी वन थिंग। चलो एक और चीज, अभी मेरे को आपने जैसे बोला कि ओके, थैंक यू मानसी। लिपिका जी, सपोज मैं भगवान में मानती हूँ, ईश्वर में मानती हूँ, सपोज नहीं, मैं मानती हूँ और बहुत आई एम सॉरी स्वरूपों में भी मानती थी, काफी मंदिरों में भी गई हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक बार शिरडी गई थी ऑलमोस्ट 8 years बैक या 9 years बैक, आई डोंट रिमेम्बर। वहां पे जो वो लोग ने वॉचमैन को, हम लोग लाइन में खड़े थे क्यू में, और वहां पे वो लोग ने जो वॉचमैन को मारा ना, वो देख के मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया, हम लोग 2 ही गए थे, मैंने उनको बोला आज के बाद मैं शिरडी कभी नहीं जाऊंगी। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ पीवीएच के मैं शिरडी जाना छोड़ा, नहीं तो साल में एक बार तो शिरडी जाना ही जाना, ओके? जब भी उनको मारा ना, तभी मैंने बोला कि साईं बाबा ऐसा बोलते थे कि कुत्ते को भी नहीं मारूंगा मैं, तो कोई मारता था कुत्ते को, पत्थर मारता था ना,
तो भी साईं बाबा को खून निकलता था, ऐसा स्टोरीज में देखा है, ओके, सीरियल्स में। तो अगर इतना है तो ये लोग इंसानों को शिरडी में ऐसे कुत्ते के माफिक क्यों मार सकते हैं? तो तब से मैंने बंद कर दिया, और वो जो बंद किया ना, उसमें मेरा एक थॉट प्रोसेस खुला कि अगर मैं जेन्युइनली किसी भगवान या किसी एनर्जी को मानती हूँ तो मुझे उनके पास जाने की जरूरत है क्या? मैं अगर मेरे में इतना पावर है तो मैं मेरे भगवान को मेरे पास अभी बुलाऊंगी कि नहीं तू मेरे पास आ, मैं जिद करूंगी आप मेरे पास आओ। मुझे मंदिरों में जाने की जरूरत है उसके लिए लिपिका जी? नहीं है मैडम, आपने सही बोला। मेरे भी रियलाइजेशन आपने कर दिखाया कि एक्चुअली नहीं जाना, मतलब नहीं जाना पड़ता है। हम हमारा सोच से ही भगवान है ना, हमारे साथ कनेक्शन है उनका। तो हम अगर चाहे तो घर में बैठ के भी उनको मिल सकते हैं, उनको हमारा प्रॉब्लम बता सकता है। वही सही है, आपने जो बोला वही सही है। एग्जैक्टली थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू लिपिका जी, आज आपके वजह से ये सब निकल रहा है, मुझे नहीं पता है, बट थैंक यू कि आज ये बातों की वजह से क्लैरिटी आ रही है कितने लोगों को मैम आपके वजह से। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो अभी काफी लोगों ने ऐसे बोला कि जो मिठाई लेके जाएंगे उनपे वो एनर्जी खुश होगी, ओके। अगर मैं सच्चे मन से, जैसे लिपिका जी ने 5 मिनट पहले बोला कि सच्चे मन से जो ईश्वर की पूजा करेगा ईश्वर उनसे खुश होंगे, तो मैं सच्चे मन से मैं ईश्वर की पूजा कर रही हूँ, और मुझे कुछ अगर मिलना है और वहां पे ईश्वर के बदले कोई और ऊर्जा बैठी है जिसको सिर्फ मस्ती करनी है, मिठाई खानी है या कुछ भी करना है, ओके, वो किस पे मेहरबान होगा? जो मिठाई लेके जा रहा है उसके ऊपर। तो उसको अगर कुछ मिल रहा है तो वो उसके नसीब में है या उसको ऐसे ही किसी की मेहरबानी से मिल गया? इट इज नॉट देयर, उसके नसीब में नहीं है वो, लेकिन वो मांग रहा है, उसके लिए पुरुषार्थ भी कर रहा है। लेकिन पुरुषार्थ क्या कर रहा है? घर पे बैठा है लेकिन सिर्फ भगवान के पास रोज मिठाई लेके जा रहा है, मुझे जॉब दिला दे, मुझे 50 लाख का पैकेज का जॉब दिला दे करके वो ये काम कर रहा है, लेकिन कहीं भी अपनी सीवी नहीं भेज रहा है। और अगर उसको जॉब मिल गई तो वो जॉब अगर किसी डिजर्विंग बच्चे की या किसी डिजर्विंग इंसान की थी जो उसको मिली है, तो क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया प्रकृति में। तो दिस इज हाउ द इम्बैलेंस हैज स्टार्टेड, कि अमीर अमीर होते जा रहा है, पुअर पुअर होते जा रहा है, जिसको जो मिलना चाहिए मेहनत कर रहा है उसको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो इम्बैलेंस हो रहा है वो कहीं से स्टार्ट हुआ था इसी तरह से, ओके। इसीलिए पीवीएच बोलता है आप ईश्वर में मानते हो, आप सिर्फ वॉन्ड क्या करता है, हमारा वॉन्ड हमें सोल के साथ कनेक्ट करता है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ हमारी वॉन्ड को यहाँ पे रख के आपको जो भी कनेक्शन करना है अच्छा वाला वो आप कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ योर वॉन्ड आप खुद के सोल को किसी के साथ भी सोलफुली कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक माध्यम है, मीडियम है, जो हमारे सोल को किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकती है। तो आप अगर ईश्वर में मानते हो, ईश्वर के किसी भी रूप में मानते हो, आप इसके साथ कनेक्ट करके यू कैन गेट व्हाट यू वांट, ओके। लेकिन आप वो वांट वाला मिल गया, मुझे 50 लाख का पैकेज मिला, किससे मिला? कि इससे छीन के इसको मिला। तो छीन के मिला है या इम्बैलेंस की वजह से मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको मैं थोड़ा बेटर इजीली समझाऊं, तो आपने कभी देखा है कि एक बच्चे को 99% आए थे, उसको जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए था उसको नहीं मिला, लेकिन 75% वाले को मिल गया क्योंकि उसके पापा ने जाके पैसा दे दिया डोनेशन का कॉलेज में। सुना है, देखा है? आई एम श्योर ये देखा, बहुत सुना है, बहुत देखा है मैम, बहुत होता है ऐसा। मैडम, तो मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हूँ वो यही सिचुएशन है, ओके। ब्राइबिंग द गॉड, entities in the name of God, entities sitting in the name of God, ब्राइब करना, करप्ट करना। तो इंसान अभी भगवान को भी लालच देता है कि भगवान आप मुझे 95% दोगे तो मैं आके आपको 11 नारियल चढ़ाऊंगा, 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो व्हाट इज ऑल दिस? आप किसको दे रहे हो? वो भगवान को। जैसे लिपिका जी ने अभी बोला कि भगवान तो प्योर सोल के पास जाएगी, तो वो अगर भगवान है तो ऐसी इच्छा पूर्ति होती है ब्राइबिंग से? तो वो भगवान है? क्वेश्चन मार्क, वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, ये भगवान है यहाँ पे?
तो बेस्ट गौतम बुद्ध के जो है लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करो, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, एनर्जीज को यहाँ वहां भटक के खराब मत करो, और अच्छे अच्छे काम करते जाओ, सिंपल। और जो भी आपको मिलता जाता है उस पे आप काम करते जाओ, पुरुषार्थ करते जाओ, अपने कर्म बांधते जाओ अच्छे अच्छे, और वैसे ही ईश्वर आपको खुश होके आपको अच्छी चीजें खुद ब खुद देंगे। ईश्वर क्यों देंगे? आपके नसीब ही आपको देंगे, आपके कर्म ही आपको देंगे। यस रश्मि। मैम मुझे ये पूछना है कि हमको जो मिला है उसको ऐसे एज इट इज एक्सेप्ट करें, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द केसेस में यही करते हैं कि हमको कुछ कुछ इच्छाएं डेवलप होती है बिकॉज प्रेजेंट सिचुएशन में उस पर्टिकुलर चीज से हमको प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं रेंट पे रहती हूँ, तो मैंने देखा मैं ऑलमोस्ट 14-15 ईयर से मैं रेंट पे हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मेरी इच्छा बन रही है कि मैं अब घर खरीदूंगी, तो क्या ये इच्छा भी इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है? आपकी इच्छा अगर दूसरे को देख के हो रही है, नहीं आपको मैम, अपने ये प्रॉब्लम हो परेशानी रही से है, डेवलप हुई है। आपको अपने प्रॉब्लम से हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको परेशानी मत समझो, ऐसे समझो हाउ यू कैन कम आउट ऑफ इट। ओके, उसको परेशानी मत समझो, उसको चैलेंज समझो कि मेरे को इसमें से बाहर आना है, और कैसे आना है, मैं क्या क्या करूं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या क्या इसमें कर सकती हूँ। कोई मेरे को आज, मैं सपोज मैं एक पॉश एरिया में रह रही हूँ, तो शायद मैं थोड़ा लोअर एरिया में चली जाऊं। ओके, कि शायद मैं अगर अगर माटुंगा रह रही हूँ या यहाँ पे साउथ बॉम्बे में रह रही हूँ, तो उसके बदले में शायद थाने में रहने आ जाऊं, तो मेरा घर बन जाए। यू गेटिंग इट? तो आप जब ये सब सोच के आप रास्ते निकालना शुरू करोगे ना, आपका डेफिनेटली काम होगा। मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा के नहीं होता है। हाँ, आपको अगर कहीं पे कोई ब्लॉक्स है, कि मैं बोलती हूँ देख रश्मि को तो बहुत होशियारी है, उसको तो 2 BHK ही चाहिए, उसको 1 BHK तो चाहिए ही नहीं। अगर मैं ऐसा सब सोच रही हूँ आपके बारे में, जो आपके विश के आगे ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा है, आपको कॉर्ड्स में आ रहा है, तो उसको आपको न्यूट्रलाइज करते रहना है एफर्मेशंस पढ़ पढ़ के। ओके, जैसे जैसे वो एफर्मेशंस पढ़ के वो सब आपके निकलते जाएंगे कॉर्ड्स, और आप भी साथ में पुरुषार्थ करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे। एक बंदा था जिसको जॉब ही नहीं मिल रही थी, वो बोल रहा था मुझे 25,000 का पगार ही मिल रहा है, मैं जॉब नहीं लूंगा। उसको बोला तू 25,000 वाला जॉब ले। एक बार तूने 25,000 का जॉब लिया ना, तो तेरे को आगे प्रोग्रेस में, आप घर पे बैठे होगे तो कोई आपको जॉब देने वाला नहीं है। आप एक जॉब लोगे, आपकी एनर्जी, वर्किंग वाली एनर्जी जनरेट होगी, और वो एनर्जी जनरेट होगी तो आपको सामने से दूसरे ऑफर्स आएंगे। 25 से आप 30 पे जाओगे, 30 से 35 पे जाओगे, वैसे करके आप लाख, 2 लाख, 3 लाख पे पहुंचोगे। अगर आप शुरू ही नहीं करोगे, लंबे लंबे सीधे एक स्टेप से आप 5th स्टेप पे जाओगे कि मुझे सोबो में ही 2 BHK का फ्लैट चाहिए 10 करोड़ का, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो आप पहले थाने चले जाओ, वहां पे 2 BHK में रहो, और मेहनत करो, काम करो, वापस आपको सोबो में जाने को कौन मना करता है, राइट? तो वापस वो सब भी हो सकता है। तो फर्स्ट यू हैव टू जनरेट दैट एनर्जी, और जो कॉर्ड्स और ब्लॉक्स है उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। ओके, आई होप रश्मि जी हैज गॉट हर आंसर। नेक्स्ट, आपको ma'am. या आपको पवित्र कैसे बन सकते हो? आध्यात्मिक स्वच्छता का पालन करके, जिसके ऊपर हमने पिछले 2 क्लास में डिस्कशन किया है। भगवान का एक साधन यानी इंस्ट्रूमेंट बने। जैसे सर बोलते हैं कि हमें आगे बढ़ते जाना है, डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनना है, लोगों की हेल्प करनी है। जैसे हर सुबह को हम लोग बैठ के 7:30 बजे लेडीज के पीरियड पेन को हील करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन, भगवान, ईश्वर, जो भी एनर्जी है, हमें एक इंस्ट्रूमेंट बना रहा है कि आप काफी सारी लेडीजों के पीरियड पेन और एक्सेसिव ब्लीडिंग को कम करो, भगवान का काम करना शुरू करें। कैसे? ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट बन के प्रकृति को समझे, ट्रीज, पेड़ पौधों को काटे नहीं। अगर कोई काटता है तो आप बचा सकते हो तो बचाइए, अगर आप नहीं बचा सकते हैं तो उनके सामने जाके दूसरे पेड़ पौधे लगाएं। जैसे अच्छे अच्छे काम आप करना शुरू करोगे, ईश्वर को लगेगा कि आप कुछ जो उन्होंने हमें दिया है उसको आप पे बैक कर रहे हो विदाउट एनी सेल्फिशनेस, आप उनको रिटर्न कर रहे हो। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कितने सारे काम, हम खाना खा रहे हैं। ये जो सॉइल हुई है, जो सॉइल है धरती माँ की, जो सॉइल को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट रिमेम्बर, मिट्टी है, मिट्टी। जिससे खाना मिलता है हमें। तो वो खाना, वो मिट्टी हमने बनाई है नहीं, लेकिन हम खाना तो 4 हाथों से खाते हैं,
चार हाथों से उसको वेस्ट भी करते हैं। तो जो कुछ भी हमें फ्री में ईश्वर ने दिया है उसको हम सेल्फलेसली पे बैक करेंगे, ईश्वर को दिखाएंगे कि हम आपने जो दिया है उसको वैल्यू करते हैं, उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो ईश्वर हमें पवित्र बनाते जाएंगे। हम किसी को और कैसे दिव्य अग्नि दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 2, क्वेश्चंस बाद में लेते हैं आरती जी, तारुलता जी। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, 5:30 तक होपफुली कंप्लीट करना है आज का सेशन। तो मैं हूं का मतलब, मैं मतलब आत्मा। जिसको भी सोल अटैचमेंट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, हम उनको रेगुलरली बोलते हैं। आपकी प्लीज आप मैं हूं पढ़िए, इससे क्या होता है आपको जो अष्टांगिक मार्ग है गौतम बुद्ध के, उसके साथ आप कनेक्ट हो पाओगे। मैं यानी एक सोल हूं, तो मुझे अगर पीड़ा आई है तो ये पीड़ा भी जाने वाली है। ये पीड़ा को दूर करने के लिए मुझे क्या करना है, माफी मांगना है, मुझे अच्छे अच्छे काम करने हैं। ओके, इस सोल को आप एक्सेप्ट करना शुरू करोगे जैसा ये सोल है उसी रूप में। ओके, इसको डिटेल में आई डोंट थिंक एक्सप्लेन करने का जरूरत है, सबको पता है, वर्ड सबको पता है। मैं रोशनी हूँ। जैसे जैसे हम अच्छे काम करते जाएंगे, शिवा सर का एक वीडियो है जो हम एंड में प्ले करेंगे कि हम छोटे छोटे जैसे फायर फ्लाइज होते हैं, जुगनू, हम वैसे वैसे छोटे डिवाइन लाइट बनते जाएंगे। हम लोगों के अच्छे अच्छे काम करेंगे। जैसे रोशनी हूँ, आपने कभी भी देखा होगा कि किसी भगवान या किसी को भी बहुत अच्छा दिखाना है, दिव्य दिखाना है, तो क्या करते हैं, उनके पीछे राउंड लाइट दिखाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि वो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, वो भगवान के लाइट बन चुके हैं, भगवान के जैसे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो जब हम वो सब करेंगे हमें भी ये सब रोशनी आएगी। और ये रोशनी का जब भी आप पढ़ते हो पेज, मैं रोशनी हूँ, प्रचुर मात्रा की, मतलब आप वो जो वर्ड्स, आई डोंट थिंक आई एम हियर टुडे, हम इसका कोई डिटेल में हमें ये समझना नहीं है। जब भी हम ये पढ़ते हैं तो हमें खुद ब खुद समझ में आता है कि हम क्या हो रहे हैं। ओके, लेकिन हमें रोशनी कैसे बनना है, लोगों को सेल्फलेसली हेल्प करके, इंस्ट्रूमेंट बन के। धरती माँ के लिए हम करेंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब ईश्वर को लगेगा कि उनकी जो सर्जन की हुई इतनी ब्यूटीफुल धरती माँ है, उनको हम सेल्फलेसली वापस वही सब दे रहे हैं जो हम यूज कर रहे हैं। ओके, देना ही प्राप्त करना है। जितना दिव्य अग्नि आप प्राकृतिक माता, धरती माता, पेड़ पौधे, पानी, हवा, बादल, नदियों, महासागरों, ब्रह्मांड, ग्रहों को देंगे, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपको भी प्राप्त होगी। ओके, तो गिविंग इज रिसीविंग। पूजा स्थल में भी आप पढ़ोगे तो ये पूजा स्थल का जो हमारा पेज है वो बहुत ब्यूटीफुल है। काफी सारे, जैसे हमने बात की कि आप अगर किसी मंदिर में जाते हो, वहां पे मिठाई पसंद कोई ऊर्जा बैठी हुई है, ओके, वो दूसरों को परेशान कर रही है, दूसरों के साथ अटैच हो रही है, एक पार्शियलिटी कर रही है, इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे ये जो पूजा स्थल वाला है प्रेयर, वो आप जाके पढ़ोगे तो वहां पे जो नेगेटिविटी है उसको वो निकाल देगा। ओके, और काफी लोगों को ये भी एक टेस्टिमोनियल है, हमारे बॉम्बे के एक आरती मैडम है, 1 मिनट1 मिनट रश्मि, लेट मी जस्ट फिनिश इट प्लीज, विल टेक क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। ओके, मैम सिर्फ ये पूछना था, कैलेंडर के साथ पढ़ना है वहां पे जाके? नो नो नो, कैलेंडर नॉट रिक्वायर्ड, कैलेंडर इज ओनली फॉर डार्क एनर्जीज। ओके, ये आपने वहां पे पढ़ दिया तो हो गया। वैसे ही इसके लिए मेरे को 2 इंसिडेंट्स बोलने हैं। हमारे यहाँ पे एक आरती शाह करके आरती मैडम है, सॉरी आरती नहीं, अवनी, आई एम सॉरी, अवनी मैडम है, जिन्होंने एक टेस्टिमोनियल दिया था कि उनके किसी घर में प्रॉब्लम था, मतलब घर बिक नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे उस मंदिर का, जहाँ पे मंदिर का नाम लेना है, उसके बदले उन्होंने उस घर का नाम लिया और उनको इमीडिएट रिजल्ट्स आए और वो घर शायद बिक गया या उनको मिल गया, कुछ तो भी था जो मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। लेकिन ये पढ़ने से उनको ये भी फायदा हुआ है। दूसरा, मेरे ही घर में एक फैमिली मेंबर ने अपने बेटे के लिए मन्नत मानी थी उनके कुल देवी टेम्पल में कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं वहां पे मेरे बेटे बहू को लेके आऊंगी। अभी बेटे बहू को तो टाइम नहीं मिलता है, उनको विश्वास भी नहीं था ये सब चीजों पे, तो वो लोग
मम्मी की बात मानने को तैयार नहीं थे कि हम जाएंगे। फिर मम्मी को बीमारी आना शुरू हो गई। मम्मी को रोज रात को 3 बजे खांसी और सर्दी, सो ही नहीं पाई, और उसके वजह से बीपी हाई लो होना शुरू हो गया। फिर ऐसे ही कुछ बात निकली तो मैंने बोला आप अभी मन्नत मान के ही आए हो तो जाके वहां पे उनको थैंक यू बोल के ही आओ। तो रातों रात टिकट निकाली। हमारी बात वेनसडे को हुई। थर्सडे को वो जाके उन्होंने वो कुल देवी टेम्पल में थैंक यू बोला, और उनको ये भी बोला कि प्लीज अभी आप जा रहे हो तो प्लीज दूसरी मन्नत मान के मत आना, कि अभी उनके बच्चे होंगे तो भी मैं लेके आऊंगी, प्लीज डोंट डू दैट। तो वो उनको मना किया और उनको बोला कि आप वहां जाके ये पेज पढ़ना, ताकि जो भी एंटिटी वहां पे बैठी हुई है उसको पता चले कि लोगों को परेशान नहीं करना है। आप सिर्फ मेरे को एक बात बोलिए, यहाँ पे स्पिरिचुअल हाइजीन का बात हो रहा है, तो जब भी हम कुल देवी बोलते हैं तो कुल देवी यानी आपकी कुल की माता। कोई भी कुल की माता आपको परेशान करेगी? आपकी माँ यहाँ पे इस हद तक आप सॉरी आपको परेशान करेगी कि आप अगर वहां पे नहीं जा रहे हो तो आपको बीमार कर देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी। कोई आ रहा है मुझे परेशान करने के लिए मेरे थ्रोट चक्र में, राइट? ऐसा नहीं करेगी, कभी तो नहीं फिर कर हम सकते। तो फिर हम क्यों ऐसे बोलते हैं कि कुल देवी हमें परेशान करेंगे या हमको पनिश करेंगे? तो ये सब बातें कहाँ पे आई है? आई डोंट अंडरस्टैंड किसने हमारे दिमाग में प्रोग्राम डाल दिया है। ओके, तो प्लीज अगर किसी को भी कोई टेम्पल में जाके लगता है कि मैं ये टेम्पल में मैं गई हूँ, अगर कई बार ऐसा होता है, मैंने तो मेरी बेटी का शादी के टाइम पे सर को पूछा था कि सर ये सब विधि में मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन अगर मेरी बेटी का शादी में ये सब करना है, मैडम डोंट गेट अटैच टू ऑल दीज थिंग्स। मतलब आप मत सोचोगे यहाँ पे कितने सारे देवी देवता है। महाराज शादी करते वक्त क्या बोलते हैं, इतने सारे देवी देवता आएंगे जो आपके बच्चे को आशीर्वाद देंगे। अगर इतने सारे देवी देवता आके आशीर्वाद देंगे तो डिवोर्स काहे को होता है? क्वेश्चन किया क्या किसी ने? कान बन के सिर्फ हमें सुनना है वो जो बोल रहे हैं वो, बस। ओके, तो प्लीज कहीं पे कोई टेम्पल में आपको जाना भी पड़े तो जाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट डोंट गेट अटैच वहां पे उस मूर्ति उस को देख के आपको जो बहुत गुड़ी गुड़ी लगता है वो मत करिए। और वहां पे बैठ के हो सके तो ये एफर्मेशन पढ़ लीजिए, तो और भी जो दूसरे लोग वहां पे आते हैं जिनका शायद कुछ उल्टा सीधा हो सकता है वो भी नहीं होगा। ओके, तो दैट इज व्हाट पूजा स्थल का है। सर का ये एक वीडियो प्लीज देखिए, ब्यूटीफुल वीडियो। Have you seen people doing welding work? The welding work, madam. At night, someone's welding is out there and you can see the light here. You know how big is the rod, madam? How big is the rod? It's only 3.2 millimeters. And they're welding that. One guy is welding that and welding the light of the spark. It's so bright you can see from far. आपको वेल्डिंग के काम के बारे में पता है? रात के वक्त अगर कोई वेल्डिंग का काम करता है तो आपको दूर तक उसका प्रकाश दिखता है। क्या आप उस छड़ी का माप जानते हैं? वह केवल 3x2 mm का होता है। और एक व्यक्ति कहीं वेल्डिंग कर रहा है, लेकिन उस चिंगारी की रोशनी इतनी तेज है कि दूर से ही दिखाई देती है। आप सभी को ऐसा ही बनना चाहिए। That's how you should become. A divine light. You know, that is the light that each one of us should become. A light at one corner of Mother Earth. If everybody can be the light and more light. You know, the firefly. You know the firefly? The small insect. But it's flying and you can see the you can see him flying around. Imagine you are 1,000,000 times as big as that. What kind of light you will have? That's what we want. एक दिव्य रोशनी, यही वह रोशनी है जो हम में से प्रत्येक को बनना चाहिए। धरती माँ के एक कोने पर एक रोशनी। सोचिए, अगर हर कोई रोशनी बन सके तो जुगनू की तरह कितनी रोशनी होगी। क्या आप जुगनू को जानते हैं? यह एक छोटा सा कीट है, लेकिन आप
इसे चारों ओर उड़ते हुए देख सकते हैं, अंधेरे में रोशनी के साथ। कल्पना कीजिए कि आपकी रोशनी उससे लाखों गुना बड़ी है। आपके पास किस प्रकार की रोशनी होगी? हम यही चाहते हैं। Everybody must be divine light. I am a divine fire. I am the pretty God inside. I am the daughter of divine fire. I am the daughter of God desire. That's how you should become. Each one of you should be a firefighter. If 1 million people can follow PVA, can you imagine 1 million light and shining everywhere, doing the blessing, and more light will form, and more people work, and Mother Earth will be so happy that each one of us are praying for the betterment of mankind. हर किसी को दिव्य रोशनी बनना चाहिए। मैं दिव्य अग्नि का जीव हूँ। मैं वह पवित्रता हूँ जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। मैं दिव्य अग्नि की बूंद हूँ। मैं ईश्वर द्वारा वांछित पवित्रता हूँ। आपको वैसा ही बनना चाहिए। आप में से हर कोई एक जुगनू बनना चाहिए। यदि 10 लाख लोग पीवीएच का अनुसरण कर रहे हैं, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आशीर्वाद के दौरान हर जगह लाखों रोशनी चमक रही होगी, अधिक से अधिक रोशनी चमकेगी, और इसके कारण धरती माता अधिक से अधिक खुश होंगे। हम में से प्रत्येक से बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम सभी मानव जाति की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Not fighting, not thinking, I'm the husband, I'm the wife, I don't like you, you don't like me, don't come near me, get out of this house. No, that's all. You all have become the light. But when you have all this thought form, you cannot become the light. You can never become the light. Start comparing you, comparing myself. I have, now cut my wish, knee cut my, I bought this, you bought my motorcycle, don't touch my motorcycle. My wife, don't tell me, don't touch my car. What can we do? If everyone be so belonging, that mine, then how can divine energy flow to each and every one of us? झगड़ा या ऐसी बातें नहीं कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मुझे यह पसंद नहीं है, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, मेरे पास मत आओ, बाहर निकल जाओ। यह सब बंद करिए। बस हम सबको रोशनी बनना है। जब आप में से सभी के विचार रूप ऐसे होंगे, तो आप रोशनी नहीं बन सकते हैं। आप कभी भी रोशनी नहीं बन सकते हैं। अपने विभिन्न कार्यों के लिए एक दूसरे के बीच में तुलना करना बंद करें। जैसे पिछली बार जब मैंने ये कहा था, तुमने ये कहा, तो यह करो, यह मत करो, मेरी मोटरसाइकिल को मत हाथ लगाओ, मेरी कार को मत छुओ, यह मेरी कार है। ऐसा सब बोलना अच्छा नहीं है। अगर हर कोई मेरा मेरा कहने लगे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर दिव्य ऊर्जा हम में से प्रत्येक तक कैसे प्रवाहित हो सकती है? हमें वह सब कुछ साझा करना है जो हमारे पास है। इसलिए जितना अधिक हमारे पास होगा, उतना अधिक हम साझा करते हैं। और अधिक मांगिए, ताकि हम और अधिक साझा कर सकें। That's all. We must share with everything that we have. You know, so the more we have, the more we can share. So ask for more. Ask for more and more that we can share. आध्यात्मिक अभिकथन हमारी आत्मा को दिव्यता से जोड़ने में हमारी मदद करते हैं। यदि इस प्रस्तुति के दौरान हमसे जाने या अनजाने में किसी को ठेस पहुंची है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड थैंक यू। द प्रेजेंटेशन इज ओवर। किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज बात कर सकते हैं अभी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।